Hello, good morning, everybody. This is Shamal here. There is a nice, beautiful rain outside last 4 days in Mumbai. It's a cloudy atmosphere. It's raining heavily. बहुत अच्छा बारिश हो रहा है. प्रकृति बहुत शांत है. सब कुछ शांत है. टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर है. उसका नीचे है. इतना 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 प्लीजेंट है. समर के बाद शरीर को भी अच्छा लग रहा है. Your body is also feeling much better now, calm and quiet. So, in this time, you also feel that प्रकृति शायद थोड़ा सा शांत हो गया. कोरोना भी शांत हो गया. सब कुछ सही चल रहा है. पता नहीं है सब कुछ सही चल रहा है और गलत चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसको तो आप चेंज नहीं कर पाओगे. You can be a silent spectator. So friends, what to do? So there is nothing to do. You are part of the system and you have to bear with all the consequences. So friends, I am not going to talk about Corona today. Today I was thinking something different, that how to define that how much you love. When I say how much you love means when it comes to individual or it comes to nation. So how to prove that you love somebody? Is there any parameter to define that your love towards your family members, or your love towards nation, or your love towards the work you do, or love towards your society? How to define what is the unit value? So, well, I really do not know it. So, for common people, is there any parameter or any CGS methodology? Either you can define, I love you this much kg. So, you can take minimum and maximum value, that I love you 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg for that matter. For that matter, one might say that how much you love your nation. You might say that I love nation 1 kg, 2 kg, 3 kg. Some index probably one can give. Well, I'm not knowing whether you can give some kind of unit value or not. But the question remains unanswered, that when it comes to putting somebody or branded somebody anti-national, national, international, or patriotic. So there are many definitions are there to label somebody. This person is anti-national. So to understand anti-national, one has to understand what is nationalism. So those are very critical terminology, or one has to understand internationalism. Now, within the nation, your fellow neighbor is somebody is telling anti-national, means he is analyzing you on the basis of he is more nationalistic. From that point of view, somebody is telling you are anti-national, or his activities. Now, an international person is telling somebody from outside, somebody is nationalist or hyper-nationalist. So one has to see those parameters very carefully, that who is speaking from which place. Means they are all speaking from, not from boundaryless society. There is a boundary, and they are speaking the other side of the wall and conveying the message that, look, you are hyper-nationalist, or you are a nationalist, or you are anti-nationalist,
within the system. Now the question remains unanswered. How to judge? Who is going to judge? Now, is there any parameter or any kind of neutral umpire who is sitting, who can tell that who is nationalist, who is hyper nationalist, who is internationalist, or who is patriotic for that matter? Well, I really do not have answer. Who is going to define all those things? So why I am speaking so, I was going through this morning a nice beautiful song by Tagore named O Amar Desher Mati. मैं जो बोलना चाहता था, नेशनलिस्ट कौन है, एंटी नेशनलिस्ट कौन है, गद्दार कौन है और पैट्रियोटिक कौन है, इसको डेफिनेशन में कौन क्या है, इसको कौन डिफाइन करता है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब है लेकिन जो करेक्ट आंसर है मेरे पास नहीं है। मैं वो डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ और আমি এই ডিবেটে যাওয়ার চেষ্টা করছি না। কেউ ন্যাশনালিস্ট আছে, কেউ অ্যান্টি ন্যাশনালিস্ট আছে, কে কোন দর্শনের দেখছে, কে কাকে বহিরাগত বলছে, কে নিজেকে তার মাদারল্যান্ডের অ্যাকচুয়াল ভেবে থাকে। সো এই ডিবেটে যাওয়া খুব একটা কঠিন জিনিস, এটা অনেকটা দ্বন্দ্বে পড়ে যাওয়া যায়। তো আমি এসব কথা ছেড়ে দিয়ে একটা রবীন্দ্রনাথের टैगोर का अच्छा कविता और गाना सुनाता हूँ, वो आमार देशेर माटी। सिंपल आप कविताते बोलले कि हबे, ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा, तोमाते विश्वमयीर विश्व मायेर आंचल पाता। अगर कविता में मैंने कैसे बोला है, ऐसे ही बोला है, ओ मेरा देश का मिट्टी, मेरा सर मिट्टी पे रख रहा हूँ। मतलब क्या होता है, आप अपना सारी चीज़ ज़मीन पे सरेंडर कर देते हो, जब सर झुका देते हो अपना ज़मीन पे, आप सब कुछ ज़मीन पे रख देते हो अपना माँ का सामने। तो माँ से ज़्यादा अपने ज़िंदगी में बड़ा कुछ है नहीं। इधर माँ प्रैक्टिकल लाइफ है, अपन माँ भी हो सकता है। जब आप देश के बारे में सोचते हो, आपका देश भी माँ हो सकता है। तो इधर आप जिस देश पे बड़ा हो रहे हो, उस देश अपना माँ है, अपना ज़मीन पे अपना सर झुका दिया है। सो आपका जो इमोशन है, पैट्रियोटिज्म है, एवरीथिंग है, आप वो देश के ऊपर है। तो डेफिनेटली आप जिस घर में रहते हो, इस घर में थोड़ा सफाई करोगे ना। ये भी तो बात होती है, सब बोलते रहता है जो नहीं, आप दुनिया के बारे में सोचो पहले, अपना घर के बारे में नहीं सोचो। तो अपना घर में चूल्हा नहीं जले, दुनिया का चूल्हा पहले देखे। ये कौन सा फिलोसफी है, हमको भी नहीं समझ में आता है। जो लोग नेशनलिज्म, कौन नेशनलिस्ट है कौन इंटरनेशनलिस्ट है, उसके बारे में डिबेट करते हैं। तो आपका व्यू इंटरनेशनल होना चाहिए, अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है। तो उस लोग के लिए हमारा छोटा छोटा बात है। आप पहले जब पढ़ाई करते हो, कोई भी जगह में पढ़ाई करते हो, पहले उस देश पे पढ़ाई करते हो, इसके बाद बाहर जाते हो। तो आप जब इंटरनेशनल हो जाते हो तो अपने देश को भूल जाते हो क्या? वही शायद हो रहा है जो हम ये नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म का डिबेट पे आ जाता है। किसी को नेशनलिस्ट बोलता है, किसी को इंटरनेशनलिस्ट बोलता है। हम तो पहले फर्स्ट वी गेट द एजुकेशन एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन स्टेट, ओन रिसोर्सेज, ओन गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके आपको जब बड़े अवार्ड मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, तब उसी देश को हम क्रिटिसाइज करता है, गाली देते हैं, कुछ भी करता है। वो तो उस देश का माउथ पीस हिसाब से और इंटरनेशनलिज्म का नाम पे उसका वॉइस होके हम बहुत सारे बात करते रहता है। सो ये डिबेट जो है बहुत कठिन डिबेट है। इसको बहुत सीरियसली सोचने का ज़रूरत है।
ये कौन सा पैरामीटर में, इन व्हिच पैरामीटर यू वांट टू डिफाइन नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। एक इंसान को जब डिफाइन करना चाहते हो, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट। द रीज़न बिहाइंड, इसको मैं एक सिमुलेशन मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल का हिसाब से देखते हो, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ। आप उसके ऊपर मैथमेटिकल मॉडलिंग तब कर सकते हो इफ़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड पैरामीटर। आप वेरिएबल पैरामीटर्स के ऊपर कोई भी मॉडलिंग आप नहीं कर पाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इन द क्वेश्चन ऑफ nationalism or internationalism, if you want to draw a concept or a model, we draw in science, let's say we draw a simulation model, we take lot of parameters which is not variable. All those variable factors cannot be considered for drawing a simulation model, like many parameters throughout the day or throughout the year changes. So there are certain constant parameter like wind speed, wind direction, temperature, humidity, solar radiation. Lot of parameters you see, it is a variable factors, but variable factors throughout the time, if you have certain data, constant data, you can have those parameters monitored very carefully, and from there you can draw a mathematical model. But in case of nationalism, or to define a nationalist, how much nationalist, how much internationalist, you cannot have a proper derivation. That is what I was about to tell you. And if somebody is deciding maybe their wisdom, it cannot be coming from a kind of a neutral way analyzing somebody. It is going to vary. Like, give an example. For British, Khudiram Bose was a terrorist. For many Indians who believes in revolution or fight against British for getting freedom, for them he is a true patriotic. So, मैंने क्या बोला? अब एक खुदराम को देख दो, खुदराम नेशनलिस्ट है, टेररिस्ट है, इंटरनेशनलिस्ट है, उसको डिफाइन कौन करेगा? इसका आंसर किसके पास है? ब्रिटिश का आंख में खुदराम टेररिस्ट है, उसको फांसी डाल दो। इंडियन का जो बहुत सारे इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट में था, जो वायलेंस मूवमेंट में विश्वास करते थे, ब्रिटिश लोग को अपना एनिमी मानते थे, दे आर द इन्वेडर्स, उसको हिसाब से जो देखते थे उसको पैट्रियट मानते थे। नाउ जो नॉन वायलेंस मूवमेंट वाले हैं, लाइक गांधी जी है, उसको खुदराम को कैसे देखते थे? तो उसका खुदराम, उस टाइम जब खुदराम का फांसी हुआ था, गांधी जी कुछ नहीं लिखे थे, साइलेंट थे। साइलेंट स्पीक्स मिलियंस ऑफ वर्ड्स। मीन्स आप साइलेंट हो मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, सिंपल सा बात है। नाउ सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा है जो नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म क्या है, कैसे सब कुछ को बनाया जाता है डिफरेंट वे में। इंडिया में वही चीज़ आज हो रहा है। जो लोग बाहर बैठा हुआ है, इस देश पे पढ़ाई करके बाहर गया, नोबेल प्राइज़ मिला, बहुत सारे अवार्ड मिला, उधर से अच्छे अच्छे, जिसको हम प्रोफेशनल गाली बोलते हैं, इसको प्रोफेशनल गाली क्या है? क्रिटिसिज्म को गाली बोलते हैं हम। इंडिया में गाली जो वर्ड हिंदी में बहुत फेमस है, गाली देते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करो, इंटेलेक्चुअली क्रिटिसाइज करो। उसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट क्यों नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटेलेक्चुअल लेवल है, इसके लिए आप गाली मारते हो। सो मैं आज सुबह में नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। सो हर एक चीज़ का एक डेफिनेशंस होती है, आप हर एक पैरामीटर से आप डिफाइन करते हो। मैं इसीलिए इस डिबेट को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारा आदमी बोलता है, कोई आपने कोई भी चीज़ लिख दिया तब बोल देता है आपने, आप हाइपर नेशनलिस्ट हो, इससे ज़्यादा भी गंदे वर्ड यूज कर लेते हैं। सो इस डिबेट पे
जाना मेरे को सही नहीं है. I will have a separate debate all those matter. Let me enjoy with a song from Tagore. আমি যেটা বলেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের আমার এই কবিতাটা খুব ভালো লাগে. রবীন্দ্রনাথকে আমরা যাই বলি না কেন, ন্যাশনালিস্ট বলি না কেন, ইন্টারন্যাশনালিস্ট বলি কেন, আর দোনোর দ্বন্দ্বে পড়ে এই মানুষটা অনেকটা ফাঁপড়ে পড়ে গেছে, এই টাইপের যদি আমরা বলে থাকি, দিস ম্যান হ্যাজ got into kind of a crossroad, whether he is nationalist, whether internationalist. তার ফাঁকে গিয়ে এই মানুষটা অনেকগুলো কান্ট্রি ঘুরে ফেলেছে. রাইট, দিস পারসন হ্যাজ ট্রাভেল অ্যাক্রস দ্য গ্লোব. নাও টু বিকাম ইন্টারন্যাশনালিস্ট, whether it is required to travel all the countries, so I really do not know. The question again remain answered. The person who is having brilliant idea doesn't have money, that means he is not supposed to be an internationalist in mind. Tagore has wisdom and money, probably he has traveled across the world. He has got the wisdom, no problem. Now the question is how to define Rabindranath Tagore. There are many people, let's say in India, people are doing in the academic field, doing their graduation, post-graduation, PhD. So they go for postdoc abroad, means they want to make themselves internationalist. Until or unless you have a stamp from abroad, like no good publication from good universities, so you don't be treated as a internationalist. That's why probably it has been asked that how many international publications you have. So all those education system, if you see, very interesting thing, like if you have international publication and this kind of marking is there, you have 5 points, 6 points, 10 points. It doesn't matter that content of the paper, but it should be like branded some paper, so then it will be treated as a good paper. Friends, I have many things to link probably, because it's a puzzle. This world is full of puzzle when your knowledge and wisdom is coming into the picture, and your wisdom and knowledge, when it has to be quantified, there are some education system, there are some parameters, all those things probably taken into consideration to define somebody as an intellectual. Fine, it is probably their wisdom, many things probably. That debate will be kind of a complex debate to define somebody, how knowledgeable somebody is, how their work is, and how society sees them, how a person independently is doing many activities like Swami Vivekananda has done individually, many other things. So individual capability is also sometimes recognized by the society, sometimes many work also not been recognized. Most of the time, if you are not part of the system, or people sees in isolation, that why should I recognize you, those kind of attitudes is there, because this is a competitive world. Again, humans are not every time they accept what you say and what you don't say. Society is a very, very complex thing, and human minds are very complex. That's why if you see that Indian National Congress went to a lot of fights, the fights for position, fights for ideology, fights for giving preference to somebody. So there is also struggle for existence, struggle for more small thing. So their idea, vision, all lost because of somebody's wish and desire. Oh friends, let me enjoy this song. Rabindranath Tagore is a great poet all the way. Really, he is a great poet. I love him like anything. I like his poetry, like O amar desher mati tomar pore ঠেকাই মাথা. এটা কবিতা হয়ে গেল. আর গানে যদি যাওয়া যায় তাহলে কি হবে? You have to give little punch, সুর লাগাতে হবে. You have to give little emotions. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা. ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ठेकाई माथा। आप कभी कभी चले जा सकते हो खुला आकाश के नीचे, आसमान का नीचे, जिधर कोई नहीं है, उधर खड़ा होके भी ये गाना गा सकते हो। आप टॉयलेट पे भी ये गाना गा सकते हो, बाथरूम में भी गाना सकते हो, आप बाथरूम सिंगर भी बन सकते हो। इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक गाना है जिस गाना को मैं ज़िंदगी भर इतना गाना सुना है। ये गाना का आप देश को भी प्यार कर सकते हो, अपना किसी को भी प्यार जता सकते हो। जो भी चीज़ है आप इस 2-3 लाइन में भी कर सकते हो। आप खोला ज़मीन के नीचे जाके, खोला आकाशेर नीचे गিয়ে ওটা বলতে পারো, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ठेकाई माथा। मैंने ये गाना इतना टाइम गाया है, इतना टाइम नहाते नहाते गाना है, वॉशरूम का अंदर में इतना टाइम गाया है। अपना बॉडी का अगर टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना है, ये गाना आप बहुत ठंडी में भी आपको गर्म पानी का भी ज़रूरत नहीं होएगा। एक बात बोलने का ये अर्थ है, इसका अंदर में इतना एंट्रोपी एनर्जी छुपी हुई है। अगर सही में आप इसको प्रैक्टिस करके देख लो, आपको बिजली का बिल आप बचा सकते हो इसको थ्रू से, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप बोलते हो देश प्रेमी होना है, यू हैव टू बी ए नेशनलिस्ट, तो इस गाना को अपना शरीर में आप ले लो, मन में ले लो। बहुत ठंडी में भी आप नहाने चले जाओ, आपको गर्म पानी का ज़रूरत नहीं है, ये हम बता सकते हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ को कितने साल हो गया, 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला, तो आज भी हम इसको याद करता है। 1913 साले नोबेल प्राइज़ पेয়েছিল। ये गाना इसका पहले कितना पहले लिखा है, राइट। ये फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर ये गाना लिखा था। तो कितने साल, 110 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका है। इस गाना आज भी हम सोचते हैं, अपना सपने में रहता है। एखोनो ये गानटा आमादेरके खूब भालो लागे। लेट अस लिसन दिस सॉन्ग फ्रॉम द ग्रेट वॉइस। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा सुनाता हूँ, कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा। देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा, देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময় আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই माथा। नाउ क्या होता है, एक गाना रविन्द्रनाथ ने लिखा है, तो इसमें भी वो डिबेट हो सकता है। रविन्द्रनाथ एक प्रोफेशनल राइटर है, इस ढंग से अगर हम सोचते हैं रविन्द्रनाथ को। नाउ एवरीबडी हैज़ गॉट ए प्रोफेशन। तो अगर टैगोर को हम सोचते हैं, भाई अपना गाना तो लिख दिया, अपना उसमें लिख दिया, अच्छे अच्छे शब्द चुन के हम देश को प्यार जता दिया, ये भी बात हो सकता है। प्रोफेशनल जॉब कर लिए है, तो इसको अब कैसे आप बता सकते हो उसका मन में क्या है। मन में मेरा तो कोई दूसरा बात चल रहा है, मन में खराब चीज़ चल रहा है, लेकिन जब हम लिखते हैं अच्छे अच्छे चीज़ लिख देता है। बिकॉज माइंड एंड योर वर्क इज़ वर्किंग इन 2 डायरेक्शन। डायलेक्टिकली आप थोड़ा सोचने कीजिए, मैं थोड़ा सा डीपर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको एक प्रोफेशनल जॉब दिया जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है तब करना पड़ता है, लेकिन आपको बोला जाता है एक काम करो, आपको माइंड एंड वर्क दोनों में रिफ्लेक्शन उसमें आता है। बट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन यू डू दैट जॉब बाय हार्ट और
आधा हार्ट दे के आप इसको कर लेते हो, मान के चलो। सिमिलर हुए अब रविंद्रनाथ, अगर मान के चलो और चीज़, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हो, जो कसाई का जॉब होता है, जो अपना गाय भैंस गोट काटते हैं, हम उसको कसाई हिसाब से देखते हैं। इसको समाज ने बोला तूने कसाई है, बट उसको जाके कभी हार्ट देखा हुआ, अगर अच्छा पोइट्री लिखता है, मान के चलो वो कसाई का जगह में आप रविंद्रनाथ को बैठा दो। आप इमेजिन ए सिचुएशन, वो कसाई रविंद्रनाथ जैसे कोई अच्छे गाना लिख रहा है, कविता लिख रहा है, आप उसको कैसे देखोगे? मैं एक सोचने के लिए थॉट दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है। जस्ट सोचने के लिए आप सोच सकते हो, नहीं सोचना है तो मत सोचिएगा। लेकिन एक प्रोफेशन का ढंग में आप और हम इसको देते हैं। सिमिलर वे लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस इन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। हम उसको मिक्सअप कर लेता है, बहुत सारा द्वंद में चले जाते हैं। लेकिन हियर इन केस ऑफ रविंद्रनाथ ये चीज़ नहीं होएगा। रीज़न क्या है? वो जो गाना वो लिखे है, प्रैक्टिकली इसको समाज में बहुत सारा आदमी पिक करके नेशनल मूवमेंट में इसको योगदान किया है। रविंद्रनाथ ने खुद ने ये गाना गाया, मतलब बाय हार्ट एंड माइंड ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट फिलोसॉफी दैट देश को प्यार करना चाहिए। ओके, लेट अस नॉट टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। मेरे को इसको थोड़ा सा और डीप पे जाना है, और थोड़ा सा सुंदर गाना गा के हम इसको मेरा डिबेट को, मेरा जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस डिबेट के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनो गाना। ये देश का देखो कितना म्यूजिक का पैशन है इसके अंदर में, क्या चीज़ इसके अंदर में किया है इंडियन आर्मी ने, इंडियन डेवलपमेंट आर्मी मिशन, ऑल दोस थिंग्स। कितना चार्ज होता है सर, तो खुद का बैटरी चार्ज करना जब से होता है, अपन का बैटरी जो है शरीर के अंदर में। हाँ, आप देखो एक नेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकता है। नेशनलिस्ट बनना है और नहीं बनना है डिफरेंट बात है, डिबेट को हटाओ अभी। कितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वाह वाह वाह। इसमें देखो कितना डेविएशन लिया है, टैगोर का जो ओरिजिनल सॉन्ग से कितना डेविएशन लिया है, इसमें अपने तरीका से गाया है। टैगोर का लिरिक्स से भी बाहर जाके अच्छे पांच दे के इसको अपन तरीका से गाने हैं, ये एक अच्छी बात है। इसमें भी कितना ओपन स्पेस है। तो इसमें जो चीज़ है बहुत समझने वाली चीज़ है। समझने वाली चीज़ क्या है? एक गाना करोड़ों इंडियन का अंदर में अपना मन में एक माया हिसाब से इसको जिसको बोलते हो ना, इमोशंस जिसको बोलते हो, पैशन जिसको बोलते हो,
ये सब हिसाब से इसके अंदर में जड़ी हुई है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। और आपको और सुनाता हो इसमें क्या होता है। आप सुनो इसको, आपको कितना अच्छा लगेगा। छोटा छोटा बच्चा जब कितना अच्छा लगेगा। You can correlate your motherland. তোমারো শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাई माथा। देखिए इसके अंदर में कितना दर्द जुड़ी हुई है। वो दर्द बहुत बहुत अंदर तक चला गया, जैसे शरीर में घाव होता है उससे ज़्यादा भी अंदर चला गया। इसको डिस्क्रिप्शन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा हुआ। और एक गाना सुनाता हूँ, सेम गाना डिफरेंट पैशन में कैसे गाया। इसमें आदमी रो पड़ता है। मंच पे जब म्यूजिक आता है उसको एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया जाता है। एक गाना ऐसा है, গানটা এমনই একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে ওটাকে মনে হয় তুমি যদি কাঁদতে চাও, যাদের কাঁদারও ইচ্ছে থাকে, সেই কাঁদতে যদি চায়, সেই যদি কারোর কান্নার ইচ্ছে থাকে, আমার কথা বলার উদ্দেশ্য হঠাৎই মনে হলো চলো আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, কি হবে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করো। সেই সিচুয়েশনে কিন্তু এই গানটা গাইলে দেখো তুমি কাঁদবে। তো নাও ইউ ইমাজিন দ্য সিচুয়েশন, হাউ হোয়াট ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ ক্লাইমেক্স ইজ হ্যাপেনিং। Now you close your eyes if you want to cry. Now just if you want to cry. Imagine. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে Now you'll start your tear will, all those tears will come out. No need of additional stimulants. Like আজকাল অনেক সিনেমাতে হয় কাঁদার জন্য অনেক আর্টিফিশিয়াল জিনিস ইউজ করতে হয়। This song is enough to release your tears. No need of mirchi or any other things. No stimulants. তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে। कितना प्यारा गाना है। দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। आप लोग का सुबह हम खराब नहीं करना चाहता है। ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है। हम जितने बार सुनता है अपना शरीर अपना मन में एक अच्छा फीलिंग आता है। योर पीस ऑफ माइंड, फॉरगेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पीस ऑफ माइंड इज़ ए वेरी बेटर थिंग वर्ड। खुद का ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ करना है आप इसको प्रेयर हिसाब से भी आप इसको ले सकते हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इस देश पे
अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में कैसे अपना नेशनल झंडा को जला देते हैं। इतना कष्ट करके हमने फ्रीडम मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन को जला देते हैं, गाली देता है, देश को टुकड़ा करने के लिए बहुत सारे बातें करता है। कभी वो लोग क्या चाहता है हमको भी समझ में नहीं आता है। वो लोग नेशनलिस्ट है और एंटी नेशनलिस्ट है। मैं इस डेफिनेशन में डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, सही है गलत है उस चीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन में ये सवाल आता है, आना चाहिए। आप सुनो, ए हेमंत कुमार कैसे अच्छा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट मैन। তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে, মিশেছো মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে। তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মোর মেঘাথা, ও আমার দেশের মাটি। I like रविंद्रनाथ लाइक एनीथिंग। आप देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं था, सो कॉल ऑफिशियल डिग्री भी नहीं थे, स्टैनफोर्ड MIT से पढ़ के नहीं आए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के नहीं आए थे। कितना अच्छा भीषण था रविंद्रनाथ। आजकल का दिन में ऐसे इंसान 130 साल में भी हमको रविंद्रनाथ नहीं मिला। सो जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल विजडम है, वो एक्सरसाइज करके गया है, इसीलिए आज वो फेमस है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, डिग्रीज, ऑल दोज थिंग्स फॉर योर प्रोफेशनल करियर यू नीड इट, बिकॉज यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी। जो डिबेट का मुद्दा बात पे आ रहा हूँ मैं, जो फाइनली इट मैटर्स आवर फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन अबाउट द सोसाइटी, इंडिविजुअल, आप टोटल मास में कैसे देखते हो, उसी के ऊपर। आप चले जाने के बाद इंसान आपको उसी ढंग से देखते हैं। आपको वर्क, आप प्रोफेशनल लाइफ में आपने क्या कर लिए, 4 पेपर पब्लिश कर लिए, कुछ कर लिए, आप चले जाने के बाद वो अलमीरा के अंदर में ही रह जाता है। आपका थीसिस पेपर वो अलमीरा के अंदर में ही रह जाता है। कितने आदमी को थीसिस पेपर लेके उसको अच्छे प्राइज मिलता है। ये समाज ऐसे कुछ नहीं है जो आपको अलमीरा का चाबी खोल के जाएगा। हो सकता है आप मर जाने के बाद वो अलमीरा को बेच दे कोई, वो भी हो सकता है, हो भी हुआ चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसे बहुत हुआ है, मरने के बाद उसको पेंटिंग मिला, उसको पोइट्री मिला। ब्रिटिश ज़माना में भी ऐसा बहुत हुआ है, जिसको लिटरेचर मिला, तो उसको ऑक्शन करके, ऑक्शन थ्योरी यूज करके बहुत सारे आदमी पैसा भी कमा लिए है। ऐसा भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, आप जितना दिन जिंदा हो, मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ, आप मत जलाओ नेशनल फ्लैग, आप मत जलाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप मत टुकड़े टुकड़े आवाज़ मत करो। इस देश को बनाने के लिए कुछ सोचो, तरीका सोचो, कैसे सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है, कैसे देश को प्यार कर सकता है, कैसे पैट्रियोटिक हो सकता है। हो सकता है आपको नेशनलिज्म के ऊपर एलर्जी है, इस शब्द के ऊपर। आप नेशनलिस्ट मत हो जाओ, आप इंटरनेशनलिस्ट होके भी आप देश को सेवा कर सकते हो। मैं सबको बोलता हूँ, IITians इधर पढ़ाई करके उधर चला जाता है, वो खुद को इंटरनेशनलिस्ट समझता है, वो सोचता है देश को प्यार करता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा भेज देता है। जैसे आप विदेश में रहता है, घर पे मम्मी रहता है, तो $10 भेज दिया, $100 भेज दिया, तो अपना कर्तव्य निभा देता है। हो सकता है, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, आप काम के खातिर में उधर गया, उधर से बहुत कुछ सोच रहे हो,
बट कभी कभी दोस्त देश को तो क्रिटिसाइज मत करो, ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। आपका विजडम है, उधर जाओ। मैं आईआईटी इस बात में बार बार क्यों बोलता हूँ, आईआईटी का एचआरडी मिनिस्टर का एक मैंडेट था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो आईआईटीएंस होता है एक डेवलप करके देश का डेवलपमेंट में उसको यूज़ करने के लिए। तो ये लोग तो देश का डेवलपमेंट के नाम पे बाहर जाता है, उधर जाके अपना घर परिवार अच्छे अच्छे चीज़ कर लेते हैं। कभी कभी देश को जब याद होता है तब इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ता नहीं है ये लोग। सिटीजनशिप कभी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इंडियन का सिटीजनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि ये सब बात बोलने के लिए एक बार अपना लाइसेंस छोड़ दिए तो आप बोल नहीं पाओगे। पीपल आर देयर टू क्वेश्चन यू। इसके लिए कभी कभी छोड़ते नहीं है ये सिटीजनशिप। अब जितने इंटेलेक्चुअल है आप देख लीजिएगा, कभी ये लोग छोड़ते नहीं है अपना सिटीजनशिप वाली बात। तो उस लोग के लिए हमारा एक छोटा सा मैसेज है। इस मैसेज जो है, आप देश के लिए सोचो कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको विजन डॉक्यूमेंट भेजो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजो। आपको प्लान क्या है? प्लान टुकड़ा करने का प्लान है और रोहिंग्या को इंडिया में घुसाने का प्लान है? क्या विजन प्लान है? अब बहुत सारा चीज़ चल रहा है, आप भी प्लान भेज सकते हो ना। उसके ऊपर क्या है, इंटेलेक्चुअली आधा घंटा आप बैठ के, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, आप भी एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या रिएक्शन होता है। सो मैं सुबह का मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। सुबह में एक कप चाय पिया, अच्छा लगा, प्योर मिल्क था। अभी ये गाना सुन के और अच्छा लगेगा। कितना प्यारा गाना है। सब इंडियन को एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी ये गाना 4 लाइन सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको देना चाहिए सब स्टेट पे। कितना प्यारा है। आपका इमोशन देखो, इसमें सब में आंख पे आंसू आ जाता है। देखो, गाना तो सब गाना होता है, गाना तो सब लिख सकता है, लेकिन कुछ कुछ गाना है अपना शरीर को, आपको मन दिल सब कुछ छू जाता है, आपको अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे अच्छा इस लगता है, उतना सहज सरल वर्ड है। मैं तो चाहता हूँ इस गाना को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सबको इसको सुबह में उठ के काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म जैसे हम सोचते हैं ना, इस ढंग से इसको सोचना है। अपना देश कितना अच्छा है, उसको प्यार करना चाहिए, सबके लिए सही है। इसके लिए विश्व मानवता सबको इससे प्यार करना चाहिए। अदरवाइज हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का जब बात होता है, जब तक प्यार नहीं आता है कुछ नहीं आता है। कितना अच्छा गाना है, देखो। देखिए, ये गाना मैं आज बता रहा हूँ, ये गाना जैसे बांग्ला में रविंद्रनाथ ने लिखा है। रविंद्रनाथ जब हमारा यूनिफाइड इंडिया था ब्रिटिश ज़माने में, रविंद्रनाथ बांग्लादेश पे भी जाते थे, सिलाई दह
ऑल दोज प्लेसेस सब तो एक ही था। इसके बाद पार्टीशन हो गया। रविन्द्रनाथ तो इंडिया डिवाइड हुआ और नहीं हुआ तो देख नहीं पाया, राइट। आपको शायद मालूम है रविन्द्रनाथ का डेथ कब हुआ था। तो रविन्द्रनाथ का सपने में भी ये नहीं था। रविन्द्रनाथ का सपने में भी एक सपना था, यूनिफाइड इंडिया का सपना था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस का था। जो रविन्द्रनाथ जो सपने देखा था सुभाष का अंदर में, वही सपना वो चाहता था रिफ्लेक्ट हो जाए। इट इज़ लाइक आप जिंदगी में जो चीज़ करना चाहते हो अगर नहीं कर पाते हो, आप दूसरे का अंदर में देखते हो, अपना नेक्स्ट जनरेशन, एक फैमिली के अंदर में, अपना बच्चों का अंदर में देखते हो वो काम करे। आप चले जाने के बाद आपका एक विजन रहता है। सिमिलर है, जब रविन्द्रनाथ सुभाष बोस मिले थे, रविन्द्रनाथ सुभाष बोस को देश नायक बोला था 1939 में, जब त्रिपुरी कांग्रेस में महात्मा गांधी ने जीतने के बाद भी उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया, उसको रेजिग्नेशन करवा दिया। वो एक काला दिन हिसाब से हम सोचते हैं। उस टाइम भी सोच गया था हम लोग इस देश का क्या हालत होने वाला है। तो हम जो बता रहा था नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म का जब बात कर रहा है, अभी शायद थोड़ा समझ में आ रहा है। रविन्द्रनाथ जैसे आदमी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बेटर वे, सुभाष बोस जैसे इंसान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, समाज को समझना चाहिए गुड कौन है बैड कौन है। हम लोग सुभाष बोस को सोचता है हिटलर को मिल लिया, मतलब वो हिटलर इज ए काइंड ऑफ एंटी नेशनलिस्ट, अच्छे आदमी नहीं था। उसको उस पैरामीटर में हम सुभाष बोस का एनालिसिस कर रहा है। हम कभी इसको एनालिसिस नहीं करता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष बोस के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो जो भी किया था देश को स्वाधीन करने के लिए ही वो किए थे। सो आप हिटलर को किस ढंग से देखते हो नहीं देखते हो, एक हर एक का हर एक तरफ सोच हो सकता है। मैं आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। हम अगर मान के चलो एक करप्ट आदमी से डोनेशन लेते हैं, इमेजिन करप्ट आदमी से डोनेशन लेके गरीब को खाना खिलाता है नाउ, और एक बुरे आदमी से पैसा लेके गरीब को खाना खिलाता है। मैं एक चैरिटी मिशन चला रहा हूँ, अगर वो डोनेशन लिया, वो डोनेशन लेना सही है और गलत है, कोई मेरे को समझा देंगे तो हम उसको मान लेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ होता है। हम हमेशा ही जब सुभाष बोस हिटलर के बारे में बात होता है, एज इफ सुभाष बोस हैज़ डन ए क्राइम इन मीटिंग हिटलर एंड आस्किंग हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। इंडियन मीन्स इंडियन ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। ये सवाल थोड़ी सोचने वाली होता है। हम हिटलर को किस ढंग से देखता है, हिटलर को कौन देख रहा है किसका ढंग से, ये पैरामीटर्स बहुत गंभीर से इसको फिलोसॉफिकली इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मैं जस्ट एक दो दिन पहले करीब 1885 टू 2021 तक फ्रॉम महात्मा गांधी टू मोदी के ऊपर मैंने 7 लेक्चर बनाया। वो यूट्यूब में है, शायद मैं भी इसको भी अपलोड करेंगे। ऐसे बैठा हुआ हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ। हमारा सोच कभी कभी गलत होता है मेरे हिसाब से। मान के चलो आज का ज़माना में कोई पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे कंट्री को लीडर को मिलते हैं, अगर उसका आइडियोलॉजी अच्छा नहीं है, उसको मिलना सही है गलत है तो उसको मिलना नहीं चाहिए, ये बात भी हो सकता है। तो मान के चलो अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरियन का प्रेसिडेंट को मिल लिए, तो आज से 100 साल पहले, 100 साल के बाद, 100 ईयर्स के बाद इतिहास कैसे उसको देखेगा? जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का आदमी एक डिक्टेटर को मिल लिया है, हम इसको किस ढंग से देखेंगे? अगर उसके ऊपर अच्छे से एक आर्टिकल बना दिया दैट somebody met North Korean dictator and all, and what is his intention or mind. So finally मेरा कहने का मतलब यही है, सुभाष बोस शायद कुछ गलती नहीं किया था और गलती नहीं किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया को फ्रीडम करने के लिए
अगर वो हिटलर को मिल चुके हैं, इतने सारे क्रिटिक है सुभाष को खाने के लिए, सो इसको मैं सही ढंग से नहीं सोचता हूँ। मैं अगर बांग्ला में बोलना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र हिटलर के मिले खूब एक खराब काज करे नहीं। जितना लेफ्टिस्ट है, जितना क्रिटिसिज्म करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ये सही नहीं है मेरा हिसाब से। उसको थोड़ा न्यूट्रल अंपायर हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करना है तो आपको उसको जवाब मिल जाएगी। फाइनली क्या होता है, हम इतिहास लिखते हैं अपना तरीका से, इतिहास लिखता है। हम हिटलर के बारे में लिखता है अपना तरीका से लिखते हैं, कभी इसको नहीं सोचता है जो कैसे चीज़ को लिखना है। हमको बहुत अच्छा लगता है आइंस्टाइन कैसे जर्मनी से उठ के अमेरिका में चले गए, सेकेंड वर्ल्ड में टाइम में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना किया है। तो आइंस्टाइन के बारे में जब बोलता है, लेकिन वही आइंस्टाइन को कैसे यूज़ किया है, कैसे आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस टाइम को जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सलाह दिए है। इसके बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद ओपेनहाइमर कैसे ज्वाइन किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे अमेरिका के जापान के ऊपर ने हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हुआ है, 74 to 76 मिलियन कैसे सब कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो चुका है अमेरिकन को। हम नेशनलिज्म को और इंटरनेशनलिज्म को किस ढंग से देखना चाहता है, मैं इस डिबेट को बार बार समझने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या डेफिनेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप पे जो सब चीज़ हुआ है उसको हिसाब से कैसे है। जैसे ब्रिटिश राज है, उसको नेशनलिज्म को इंटरनेशनलिज्म को कैसे देखता है। मेरे को हज़ारों सवाल है। जैसे नोबेल फाउंडेशन नेशनलिज्म को हेट करता है। आई मेड ए वीडियो क्लोज टू 1 hour, दे हेट। इफ़ यू आर ए नेशनलिस्ट यू आर नेवर गोइंग टू गेट नोबेल प्राइज़। अब नेशनलिज्म के ऊपर इतना एलर्जी है वो लोग का, आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक गाना का शुरू में आनंद लेना चाहता था। आनंद मतलब हमारा जो पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हो वो लेना चाहता था। इस गाना फिर से हम एक बार सुन लेता है, कितना प्यारा गाना है। भाई जेएनयू वाला आप इतना ये मत करो, ये गाना सुनो, एक कैंपस का अंदर में ये गाना लगा दो, यू विल फील मच बेटर दैट इस देश में भी अच्छे आदमी थे। भाई रविंद्रनाथ को किस ढंग से आप देखते हो पता नहीं है, बट दिस मैन इज ए ग्रेट मैन। आप अच्छे इंसान हैं। एज ए ह्यूमन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पहले अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करो। देश को बात के बाद देश ऐसे ही है, देश रहे। आप दो गाली देने में देश आप बुरा अच्छा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये भी हम समझता है। आप 2 क्यों 10 नेशनल फ्लैग जला दोगे तो देश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपका परिवार के लिए आपका काम पे लगेगा, तो देश नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। पहले अच्छा इंसान बनने का कोशिश करो, तब देश का बात करो। अपना जिंदगी का जुगाड़ कर लो पहले, बाय वर्किंग हार्ड विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। तो ये गाना सुनते सुनते अपना आंखों में आंसू आ जाता है। ये गाना सुन के हम ख़त्म नहीं करना चाहता है। ये गाना इतना प्यारा गाना है, क्या बताओ। इतना प्यारा गाना है फ्रेंड्स। फाइनली आई वांट टू एंड अप बाय सेइंग all those things what I have told, that it is absolutely fine at the end of the day or not fine. It is for individual to decide what is good and bad. Probably one should love their country, one should see the best possibilities the way they want to love the country, and there are many ways to express their love, even not uttering anything by your work. Your work has to reflect. It is not necessarily that to prove nationalist you should sing a better song or something like that. It is important that your body language and expression not destroying certain things, not firing national flag or firing those things. So
develop your character. That is what is more important. And this is only that place you leave the Mother Earth just to give you respect. You are touching somebody's feet doesn't mean that you are losing respect or you are bowing down or you are selling yourself. This is to give respect. Respect how big you might be. But in front of Mother you are too small, a too small kid. You should bow down in front of your mother, whether she is literate, illiterate, for that matter. That is the essence of life. Otherwise, what is the difference between you and animal? Okay, I have studied animal instinct, animal behavior. There is nothing, no difference. You are as wild like as animal. Okay, so in that definition, your wildness can be compared when you do all kind of activities with animal behavior, because they have one thing very less is they do not able to correlate what is rational, what is irrational. They have the emotions, but the application of emotions sometimes they misuse it in many ways. And humans are more composed, have that composition like this song. Now you can listen. Listen, I will complete this song. So I don't like to. Okay, enjoy this song. Enjoy. Enjoy. I will have a cup of tea in my hand. How beautifully it is done. How nicely this is done now. I wish probably my morning is really nice and good, and today it is almost 1 month gone. Like, I lost my parents. I was in a different state of mind. I was analyzing all those things. I am become little spiritual. So I am thinking the same song applying my mother. So it is good always to feel good about it and to think about your parents. Now both parents are not there. So all those things what I am speaking, because from my heart and mind and everything I compare with my mother, that she is no more. So I have free voice now. I can recall my mother as a motherland and everything. My mother also, my parents, they have mixed up with this same soil over here. So the same soil, when I say their body is also decomposed or their ashes are decomposed here in their mother soil. So I wish they are here very much. So again, thank you very much. It's a very emotional thing, and I think you have enjoyed a lot with those songs. And if you have any comments, let me know your opinion. Okay. And finally, there are few things I want to say, that those songs are really, really good songs. It can bind your life like anything. This O Amar Desher Mati song is really, really good song that you should also recite. I told you it will charge your energy. That charging the energy, sometime it is very, very required. So I want to, my favorite singer is Hemant Kumar. I cannot end this song with Hemant Kumar. It should be a good ending. Okay.
Listen. He's a very, very, very. See his voice. Hemant Kumar is Hemant Kumar. There is no second Hemant Kumar. Now you can hear. My tea will be ready. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে So I don't like to spoil that. I should give also. No, no, no. তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা ও আমার দেশের মাটি ওগো মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে তোমার পরে খেলায় আমার দুঃখে সুখে তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা ও আমার দেশের মাটি অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা তবু জানি নে যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা আমার জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে তুমি বৃথায় আমায় শক্তি দিলে শক্তি দাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা It's a nice song, nice morning. Hope you have enjoyed. Thank you very much for. I'm very proud that I could share this song to everybody. Have a good day. Bye bye. Take care.